ناظرین آداب، شعبہ خبر کی خصوصی پیشکش حالت حاضرہ میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں آپ کا میزبان فیاض احمد فیاض۔ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں۔ اس شعر کو سماعت کرنے کے بعد آپ کو اندازہ لگ گیا ہوگا کہ آج کس موضوع پہ بات ہوگی۔ جی ہاں، انسان کو دنیا میں لایا گیا صرف اس چیز کے لیے کہ جو درد ہے ایک دوسرے انسان کا اس کو کم کیا جائے۔ اب اگر انسان کی مخلوقات اس دنیا میں آئی تو انسان اسی انسان کو کہا جاتا ہے، اسی آدمی کو کہا جاتا ہے جس میں انسانیت ہو، جو انسان ایک دوسرے کے کام آئے۔ خدمت خلق کا جذبہ جس انسان میں ہے وہی کامیاب انسان کہلاتا ہے، اور حقیقی معنوں میں اسی آدمی کو انسان کہا جاتا ہے۔ چونکہ آپ بخوبی واقف ہیں کہ 5 دسمبر کو انٹرنیشنل والنٹیئر ڈے منایا جاتا ہے۔ اس سال اس دن کو منانے کے حوالے سے ایک خاص بات یہ رہی کہ جو پینڈیمک چلا عالمی سطح پہ، جو وبا چلا عالمی سطح پہ، اگر اس سلسلے میں سب سے زیادہ کام انجام دیا تو شاید وہ ڈاکٹرز ہیں، پیرامیڈیکل سٹاف ہے، جو اس پینڈیمک میں آگے رہا، اور ان کے ساتھ ساتھ جو وہ رضاکار جنہوں نے پیش رہ کے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر لوگوں کی خدمات انجام دی۔ وقت کا تقاضا ہے کہ یہ جو رضاکار ہے، جو رضاکار آگے آ جاتے ہیں مدد کرنے کے لیے، انسانیت کی مدد کے لیے، ان کی حوصلہ افزائی کی جائے۔ چونکہ اس سال جو ہے، اس سال 15 اکتوبر 2020 سے اس سلسلے میں ایک خصوصی مہم چلی کہ جو رضاکار ہے ان کو مدد کی جائے، ان کی حوصلہ افزائی کی جائے، اور باضابطہ 5 دسمبر کو انٹرنیشنل والنٹیئر ڈے منایا جاتا ہے۔ یہی خصوصی گفتگو ہم آج اس پروگرام کے ذریعے آپ تک پہنچانا چاہیں گے، اور تعارف کرا دیتے ہیں آج کے مہمانان کا۔ جی ہاں، ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں، یہ ہیں جناب جی اے قریشی صاحب، جو سابق ڈائریکٹر جنرل اکنامکس اینڈ اسٹیٹسٹکس JNK کشمیر ہیں، اور خصوصی طور کہنا چاہیں گے کہ آپ اس وقت آنریری ٹریجرر JNK ریڈ کراس ہے۔ آپ کا خیر مقدم ہے ہمارے شو۔ بہت بہت شکریہ۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں مدثر مقبول بٹ صاحب، جو ریڈ کراس والنٹیئر ہیں۔ شکریہ۔ چونکہ ریڈ کراس والنٹیئر کی ہم بات کر رہے ہیں، جناب جی قریشی صاحب، اس سال پینڈیمک چلا، ابھی بھی پینڈیمک کے حوالے سے جتنی اوورآل عالمی سطح پہ ہم دیکھیں گے سرگرمیاں ہو رہی ہے، ایک دوسرے کی مدد کی جاتی ہے۔ اس میں جیسا کہ آغاز میں ہم نے کہا کہ اگر اس پینڈیمک کے دوران کچھ خاص خدمات انجام دی، وہ ڈاکٹرز نے انجام دی، ڈاکٹرز اس میں پیش رہے، اور ساتھ میں رضاکارانہ طور جو لوگ ہیں انہوں نے اس میں خاص کردار ادا کیا۔ کس نظریے سے آپ دیکھتے ہیں اس چیز کو؟ جہاں تک آج کی اس انٹرنیشنل والنٹیئر ڈے سیلیبریشن منانے کا تعلق ہے، میں تمہید کے طور پر یہ ضروری کہنا چاہوں گا کہ جو والنٹیئرزم ہے، جی، یہاں جو رضاکارانہ تحریک ہے، اس کا اصل جو وابستگی ہے وہ فرام اٹس اوریجن آغاز سے ہی ریڈ کراس موومنٹ سے رہی ہے۔ بالکل۔ بہت ساری اور بھی تنظیمیں ہیں جو رضاکارانہ کام کرتی ہیں، چاہے حج پلگرمیج ہو، چاہے ڈیزاسٹر مینجمنٹ ہو، ہیلتھ میں بھی علیحدہ طور سے ہمارے ورکرز ہیں، لیکن یہ ریڈ کراس موومنٹ کی ایک خصوصی امتیاز ہے جی، کہ اس کے آغاز سے ہی، بلکہ اس کے جو انسٹرکشن پرنسپلز ہیں، اس میں والنٹیئرزم کی بہت بڑی اہمیت ہے اور افادیت ہے۔ آپ نے جو سوال کیا کہ پینڈیمک میں اس کا کیا رول رہا ہے والنٹیئرز کا، دراصل جو ریڈ کراس موومنٹ ہے اس کا اصل مقصد یہی ہے، جب کوئی کرائسس سچویشن ہو، چاہے وہ پینڈیمک ہو، چاہے ایپیڈیمک ہو، جی، چاہے فلڈس ہوں، چاہے وار ٹائم ہو، جی، اصل میں اس کی جو بنیاد بھی انہی حالات میں پڑی ہے۔ اور جب پینڈیمک کی صورتحال پوری دنیا میں سے اس کا سابقہ پڑا پوری دنیا کو اس وبا سے، تو جہاں جہاں بھی ہیلتھ آرگنائزیشن فرنٹ لائن پر ہمارے ڈاکٹرز اور ہیلتھ ورکرز ہیں، جی، لیکن ان کے سپورٹ میں جو آگزلری رول سب سے اہم نبھایا پوری دنیا میں، وہ ریڈ کراس والنٹیئرز ہیں۔ میں یہ بھی
सफाई देना चाहता हूँ कि वॉलंटियर्स और भी तंजीमों में हैं, लेकिन रेड क्रॉस का ये तुरई इम्तियाज़ है कि ये दुनिया में सबसे बड़ी वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन, बल्कि 1 बिलियन वॉलंटियर्स अक्रॉस द ग्लोब जी आर लिंक्ड डायरेक्टली विद दिस ऑर्गेनाइजेशन, विद दिस मूवमेंट। तो लिहाजा जो इस वबाई सूरत हाल में रज़ाकाराना खिदमात अंजाम दी रज़ाकारों ने, वो रेड क्रॉस मूवमेंट ही से ज़्यादा वाबस्ते। मसलन मैं आपको ये अर्ज़ करूँ कि हमारा कठुआ में जी जो मदद वो हम पहुँचानी थी, जितने भी वहाँ से ट्रेवलर्स वापस आते थे उनकी जो देखभाल करते थे, उनको ग़िज़ाएँ बहम पहुँचानी थी या दवाइयाँ बहम पहुँचानी थी, उनके लिए कम्बलों का इंतज़ाम करना था, वहाँ हमारा खुसूसी तौर पर जो रेड क्रॉस यूनिट है वो काम करता है। सवाल एक उभर रहा है हमारे सामने, वो ये है कि जैसे आलमी सतह पे हम बात कर रहे हैं, आलमी सतह पे वॉलंटियर की अहमियत व अफादियत कितनी है, ज़रूरत कितनी है। अगर हम खुसूसी तौर यहाँ पे जम्मू कश्मीर की बात करेंगे, चूँकि जम्मू कश्मीर में बनिस्बत के बाकी यूटीज़, बाकी स्टेट्स, बाकी जगहों की अगर हम देखेंगे, यहाँ पे इस सिलसिले में शायद इस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि अगर हम सिंपल बात करेंगे यहाँ पे नेशनल हाईवे की श्रीनगर जम्मू शाहरा के हवाले से आए रोज़ वहाँ एक्सीडेंट्स होते जा रहे हैं। नागानी आफात के हवाले से अगर हम बात करेंगे, आग के वारदात के हवाले से अगर हम बात करेंगे, पेंडेमिक के हवाले से अगर हम बात करेंगे, क्या आप इसको, इस ज़रूरत को समझते हैं ज़रूरी कि यहाँ पे वॉलंटियर के हवाले से ज़्यादा खिदमत अंजाम दी जानी चाहिए, ज़्यादा इसमें होने चाहिए जवान, बाकी आवाम, बाकी लोग बनिस्बत के बाकी जगहों के? बिल्कुल, आपने ये सवाल, आपका बड़ा मजा है, बहुत ही रिलेवेंट है। बल्कि अगर आप देखेंगे 1947 से ही यहाँ के जो हमारे हालात रहे, सियासी बेचैनी रही, बेयकीनी सूरत हाल रही, बहुत सारे वार्स हो गए इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान कश्मीर में। लिहाजा इस किस्म की ऑर्गेनाइजेशन का यहाँ बहुत बड़ा रोल रहा है 1947 से। हालांकि इतनी ज़्यादा तादाद नहीं थी, लेकिन जितनी कलील तादाद भी थी, इनका अहम रोल रहा है और इसका रोल, इसकी इफादियत रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही है, क्योंकि यहाँ यह एक जोग्राफिकली अनस्टेबल रीजन है जी इस पर जम्मू कश्मीर। और फिर अगर देखेंगे भी आप, बल्कि यहाँ एक कन्फ्लिक्ट की भी सूरत हाल रही है पिछले 20-30 साल से। ऐसी हालात में एक रेड क्रॉस मूवमेंट का जो ये वॉलंटरी सर्विस है, इसकी बहुत बड़ी इफादियत और अहमियत है। आपने बहुत अच्छा कहा कि हमारा जो ये नेशनल हाईवे बेसिकली इट हैज़ प्रूव टू बी ए किलर रोड फॉर पर्टिकुलरली फॉर लास्ट 1 डिकेड जी, क्योंकि इसकी जो जिस लाइफ थी इस रोड की, वो ख़त्म हो चुकी है। आए दिन वहाँ ये वाक़ात होते हैं, हादसात वगैरह रोनमा होते हैं। लेकिन मैं ये बिल्कुल फ़ख्रियत और कहता हूँ कि पिछले साल मैं पूरे जम्मू डिवीज़न में मैंने रिव्यू किया, मैं जम्मू के हर कोचे में फिरा, जहाँ भी मैं गया वॉलंटियर्स ने काम किया, वॉलंटियर्स ऑफ बनहाल एंड रामबरवाई इन फोकस। अब आपके पास जनाब कुरैशी साहब, आपके पास फिर लौटेंगे। आपसे जानना चाहेंगे मुदस्सिर मकबूल भट्ट साहब, पहला एक खूबसूरत सवाल आपसे, वो ये है कि बहसियत वॉलंटियर, बहसियत रज़ाकार आप काम कर रहे हैं। इंसान को जब किसी परेशानी में मुब्तला होता है, किसी दुख में मुब्तला होता है, शायद एक इंसान को तभी सबसे ज़्यादा सुकून मिलता है जब वो किसी की मदद करे, जब वो किसी के काम आ जाए। तो जब आप किसी की मदद करते हैं, कैसा सुकून पाते हैं आप? पहला सवाल आपसे। सलोनी, इतने दाग धुल जाएंगे। और कीटाणु का क्या? मासी ऐसा गुस्सा करेंगी मामा। नया फेना जर्म क्लीन, जो सिर्फ दाग नहीं हटाए 99% तक कीटाणु भी। ये लैब से प्रमाणित है, इसलिए फेना ही लेना। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। जरा सी हंसी दुलार, जरा सा अमूल, the taste of India, जरा सी अनबन प्यार, जरा सा अमूल, the taste of India, यही तो अमूल है स्वाद इंडिया का, यही तो अमूल है the taste of India। मम्मी की छुटकी, डैडी की गुड़िया,
पल में जो भर दे खुशियों से दुनिया, खट्टी मीठी बातें मस्ती मुलाकातें, दिल में बसी सबके इस घर की बेटियां, हर घर के हर दिल में बसा अमूल ताजा हमेशा फ्रेश। इस घर की बेटियां। ऐसा सवाल है जो गालिबन हर एक उस इंसान से पूछा जाता है जो इस काम से जुड़ा हुआ है। जी, जैसा कि आपने इस प्रोग्राम का आगाज़ ही उस शेर से किया था, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना तात के लिए कुछ कम न थे कुरूबियाँ। जी, तो ये समझे कि एक दर्द दिल जब हम किसी को अपना यानी उसको एक हेल्पिंग हैंड देते हैं, जी, उसको हम उसकी मदद करते हैं, तो एक ऐसा सुकून महसूस होता है कि जो हम यानी जो हम कहने से कासिर हैं, जी। वो एक ऐसा सुकून है जो हम अंदर से ही फील करते हैं और ख़ुद को समझते हैं कि हम खुशकिस्मत हैं कि हम किसी की मदद कर पाते हैं। सवाल चूँकि आपने सुना जनाब जे कुरैशी साहब, इस तरह से कि इन्होंने कहा कि हम जो सुकून है वो हम हासिल कर लेते हैं जब किसी की मदद करते हैं। चूँकि आप भी इससे चीज़ से बाकी मतलब बाखबर है क्योंकि आप इसके साथ जुड़े हैं, आपसे फिर जानना चाहेंगे मुदस्सिर साहब, अभी जो इस वक्त आप सरगर्मियाँ अंजाम दे रहे हैं, क्योंकि आप ही पेश रहते हैं, आप जाते हैं कहीं पे कोई एक्सीडेंट हुआ, कहीं पे कोई और काम हुआ, तो आपसे ये जानना चाहेंगे, आप बताइए कि रज़ाकाराना तौर आज तक आपने कहाँ तकरीबन काम किया? रज़ाकाराना तौर पर जैसे अभी रिसेंटली जो फ्लड्स हुए थे, फ्लड्स में हमने काम किया। उससे पहले जब मैं यानी अभी कॉलेज में पढ़ता था तब यहाँ पे ज़लज़ला आया था जी, तो उस टाइम पे काम किया। अभी रिसेंटली फ्लड थ्रेट आई थी 2 साल कबल जी, तो उसमें जी। हमें काफ़ी जगहों पे यानी मटेरियल पहुंचाना था उसमें। और ख़ुसूसी तौर पर अब कोविड की बात करें, जब से लॉकडाउन हुआ था, लॉकडाउन के बाद हमें 2 महाज पे काम करना पड़ा। जी, एक ये था कि हम डॉक्टर्स के साथ बिल्कुल एक वेरियर्स के तौर पे काम करें, तो उसमें भी हमारे काफ़ी वॉलंटियर्स जो हैं वो काम कर रहे थे। दूसरा है कि जहाँ पे मैं दूसरे महाज पे काम करता था, वो ये था कि हम फूड पैकेट्स पहुँचाएँ और किसी को मॉनिटरी सपोर्ट किया, किसी को मेडिसिन पहुँचाई, और इसके साथ हम जुड़े थे और अभी भी वो सिलसिला जारी है। जनाब कुरैशी साहब, इन्होंने कहा कि जो मतलब फ्लड के दौरान इन्होंने काम किया, पेंडेमिक के दौरान इन्होंने काम किया, आपसे आप ये बताइए कि जो जैसे हमने इससे पहले भी इसका जिक्र किया कि यहाँ पे जम्मू कश्मीर में जो हमारे यूथ्स हैं, जो हमारे नौजवान हैं, इस चीज़ की तरफ कितने राग़िब हो जाते हैं और किस तरह से राग़िब हो जाते हैं और रुझान क्या है नौजवानों का? हाँ, जहाँ तक वॉलंटियर्स एंगेजमेंट का ताल्लुक़ है, इस सिलसिले में हमने बहुत कोशिशें भी की हैं अभी तक रेड क्रॉस मूवमेंट ने, बल्कि मैं यह भी कहूँगा दूसरी भी ऑर्गेनाइजेशन है जैसे डिज़ास्टर मैनेजमेंट है, हम तो सारे यूनाइटेडली काम करते हैं, हम सारा क्रेडिट नहीं ले लेंगे। इस साल उन्होंने कोई नोटिफिकेशन भी निकाली थी डिज़ास्टर मैनेजमेंट ने कि डिस्ट्रिक्ट्स में उनको रजिस्टर करने हैं वॉलंटियर हु विल बी प्रोवाइडिंग देम दिस असिस्टेंस जब इनकी ज़रूरत पड़ेगी जहाँ जहाँ डिज़ास्टर हो। जहाँ तक रेड क्रॉस ऑर्गेनाइजेशन का ताल्लुक़ है, हमारे पास इस वक्त करीबन 300 के करीब वॉलंटियर्स हैं पूरे जम्मू एंड कश्मीर में जी, जो हमारे साथ रजिस्टर्ड हैं और एक्टिवली काम करते हैं। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी, हाँ, मुख्तलिफ ज़िलों में, हर ज़िले में हमने लिस्ट मंगवाई है, तो उसकी तादाद कुछ 300 के करीब बनती है। सबसे ज़्यादा हमारे वॉलंटियर्स जो हैं, एक तो ये जो राम बनमान हाल सेक्टर है, मैंने अभी भी किया, मैं जिस एट द कॉस्ट ऑफ प्रोटेक्शन फिर कहूँगा कि उनकी हर जगह पजीराई होती है, हर गली में, हर कोची में कितना वो काम करते हैं। जब भी हमारा ये कौमी रास्ता बंद होता है तो जो मुसाफिर होते हैं उनको कितनी तकालीफ होती हैं। दीज आर द पीपल हु कम दियर रेस्क्यू। इसी तरह जो हमारा चनाब वैली का इलाका है, डोडा किश्तवाड़, वहाँ के वॉलंटियर्स भी हर वक्त मीडिया में भी फोकस रहते हैं, लोग भी उनको जानते पहचानते हैं कि ये वही लोग हैं। जब भी कोई हादसा होता है सड़क के हवाले से या दरिया में डूब जाने के हवाले से, दे आर एट देयर बैक, वो वहाँ हाजिर होते हैं। कुरैशी साहब, आपने जिक्र किया, चूँकि आपने फरमाया कि जो ये वॉलंटियर्स हैं ये पेश रहते हैं इन हादसात के दौरान, इन वाक़यात के दौरान। अब जो सवाल हमारे पास यहाँ पैदा हो जाता है कि इनमें ये जज्बा जो पैदा हो जाता है, कौन सी चीज़ ऐसी है जो इनको तैयार करती है खिदमत खल्क के हवाले से, और आपके रेड क्रॉस की तरफ से इस सिलसिले में क्या कोशिशें हैं? देखिए, जहाँ तक ये जो है, एक तो जज्बा है
जज्बा हम लोग पैदा नहीं कर सकते हैं, ये तो एक अल्लाह ताला की दयन होती है। बल्कि अभी आप बात कर रहे थे जो मतलब असल जो है इसका दर्द दिल है, खदमत खलिक है, सही बात है, इंसान की खिदमत करनी है, यही इंस्टाइंट प्रिंसिपल्स हैं ऑफ रेड क्रॉस मूवमेंट एंड आल्सो वॉलंटियरिज्म। लेकिन मैं आपको यह कहूँगा जहाँ जब हम इंसान की बात करते हैं, इंसान उनसे है, ये अरबी का जिस लफ्ज़ है उनस मोहब्बत को कहते हैं। जो इंसान है इसमें मोहब्बत और जज्बात, ये जो शफ़क़त के जज्बात है वो होते हैं। कोई भी इंसान, चाहे आप हैं, इसका कोई भी मज़हब हो, कोई भी मुल्क हो, बिल्कुल सही। लेकिन इसमें जब एक इंसान दूसरे इंसान को देखता है ये दुखी है, ये किसी मुसीबत में पड़ा है, तो नेचुरली उसको एक हमदर्दी का जो जज्बा अल्लाह ने उसके दिल में, इसके कल्ब में डाला है, वो उभर आता है। तो हमारे जो नौजवान हैं अभी इनकी ज़्यादा, मैं आपको कहूँगा अभी इनको ज़्यादा घरेलू जिम्मेदारी अभी नहीं होती, लेकिन इनमें खिदमत खलिक का जज्बा ज़्यादा होता है। अब जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं इनका यह काम होता है कि इनको वो प्रोडक्टिवली इंगेज कर लें। हमारी रेड क्रॉस में ये कोशिश रही है कि हम इनके लिए स्किल डेवलपमेंट और ट्रेनिंग डेवलपमेंट का प्रोग्राम हमने इनके लिए रखे। जो 15 दिसंबर को 15 अक्टूबर से जो ये मुहिम चली इस हवाले से, और 5 को जो 5 दिसंबर को ये दिन मनाया जा रहा है, इख्तिताम पजीर हो रहा है, इस सिलसिले में जो मुहिम चली उस मुहिम में ख़ास मुद्दा और मकसद ये रहा कि हमें अप्रिसिएशन करनी चाहिए ऐसे नौजवानों की जो पेश रहते हैं। तो उस सिलसिले में क्या किया जा रहा है? देखिए, इस दौरान हमने कहीं कहीं ब्लड डोनेशन कैंप्स भी किए, और यह भी किया हमने कि ये जो है कोविड के हवाले से हमने लोगों में अवेयरनेस दे दी। उसमें भी हमारे रेड क्रॉस थे, और रेड क्रॉस को पजीराई करने के लिए हमने रियासती सतह पर और रीजनल लेवल पर भी कुछ इकदाम हमने उठाए हैं। जिन्होंने अच्छा काम किया है उनकी ज़रूर पजीराई होगी, यूटी लेवल पर भी, रीजनल लेवल पर भी। बल्कि हमने डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर्स को भी ये हिदायत दी है कि जिन वॉलंटियर्स ने कोविड के दौरान या इस मुहिम के दौरान जो अवेयरनेस हमने क्रिएट करनी थी या इनकी पजीराई जो करनी थी इस हवाले से, तो जिन्होंने अच्छा काम किया है इनकी हौसला अफजाई होनी चाहिए, उनको अवार्ड्स देने चाहिए, और इनकी जितनी भी ज़रूरियात हों कैपेसिटी डेवलपमेंट की, बिल्डिंग के हवाले से, उसके लिए एक बाज़ाब्ता प्लान हमारे पास भी है, उनको वो बनाने चाहिए। वी विल बी फाइनेंसिंग दैट इन द कोर्स ऑफ टाइम, जब ये इस किस्म का कोई प्रपोजल आ जाए। जी मुदस्सिर साहब, चूँकि आप ये बताइए, अब एक वॉलंटियर है, एक वॉलंटियर खिदमत खल्क के हवाले से पेश रहता है, लेकिन साथ में उसकी ये भी जिम्मेदारी है कि उसको अपने घर को भी पालना है, उसकी जिम्मेदारी वो भी है, उसके बाल बच्चे हैं, उसके बाकी अफराद खाना है। चूँकि अब आप बहैसियत वॉलंटियर काम कर रहे हैं, रेड क्रॉस के साथ जुड़े हैं, आप इन दोनों चीज़ों को बैलेंस कैसे रखते हैं? किस तरह से दोनों ज़रूरियात, यहाँ से खिदमत खल्क और वहाँ से अपने घरेलू ज़रूरियात? जी, एक बहुत ही इंतहाई अहम क्वेश्चन है, और इस हवाले से मैं ये कहना चाहूँगा कि एक मैनेजमेंट होता है, इंटरनल मैनेजमेंट हम बोलते हैं, हम चीज़ों को मैनेज करते हैं। यानी एक वॉलंटियर वो होता है कि जो मैनेज करना जानता हो, कैसे मैनेज करें। जी, जहाँ तक घर की जिम्मेदारियाँ हैं वो हम अपने पर्टिकुलर टाइम में वो चीज़ें संभालते हैं। जी, रेड क्रॉस के लिए मैं ये कहूँ कि हम फुल टाइम वॉलंटियर्स नहीं होते हैं, जी, हम पार्ट टाइम वॉलंटियर्स होते हैं। जब भी ज़रूर एट द टाइम ऑफ नीड, जब भी ज़रूरत हमारी होती है, हम कमिटेड होते हैं इस हवाले से कि हमारे घर का काम जो होगा वो हम वहीं पे रखेंगे और लोगों की मदद के लिए उस टाइम पे हाजिर होंगे। तो ये कोई ऐसा नहीं होता कि हम कंटिन्यूसली यानी ऑफिस के ही अटेंड करना है और फील्ड में रहना है, ऐसा कुछ नहीं होता है। एट टाइम्स ऑफ नीड हम रेडी होते हैं, कमिटेड होते हैं, उस टाइम पे हम वो कुर्बानी देते हैं, सेक्रीफाइस, हम घर की जिम्मेदारियों को छोड़ के इसमें आ जाते हैं। ये आपने एक पहलू बता दिया, ये बहुत ही हौसला अफजा बात है। जैसे आपको कह रहे हैं कि हम इसके लिए भी टाइम वक्फ कर रहे हैं और अपने घरेलू ज़रूरियात के हवाले से उस चीज़ के लिए भी वक्त हम जो है वो मुअय्यन कर रहे हैं। सवाल हमारे पास ये है कि अभी आप हैं जी, आपके बाद हमें और नौजवानों को इस चीज़ की तरफ रागिब करना है। जी बिल्कुल। तो एप्रिसिएशन के हवाले से हमने बात, किस तरह से हम सभी यूथ्स को इसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं और किस तरह से उनको रागिब कर सकते हैं? उस हवाले से सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो है वो ऑर्गेनाइजेशंस की है। जी, जो भी वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो वॉलंटियर्स के लिए यानी ऐसी सहूलियात रखें जिससे यानी अभी एक कि वॉलंटियर्स को एंगेज कैसे रखें और मोटिवेट कैसे रखें, ये दो चीज़ पहलू निकल सकते हैं। ये वॉलंटियर्स तो जैसे मैं पिछले 6 या 7 साल से लगातार रेड क्रॉस के साथ एज पार्ट टाइम वॉलंटियरिंग कर रहा हूँ, ठीक है।
कुछ लोग ऐसे होंगे जो शायद 6 साल नहीं दे पाएंगे, जी। शायद 1 साल दे पाएंगे या 1 महीना दे पाएंगे। तो उसको कैसे हम मेजर करें, यानी हम किस तरह से उनको इन्वॉल्व रखें और एंगेज रखें। ऐसा ना हो कि मैं एक सतह पे आके डिमोटिवेट होके फिर बैठ जाऊँ। इसके लिए रागिब करने की बात कर रहे हैं, आपका हाँ, तासुर वो चाहेंगे, आप organization रशीद level साहब पे बताइए। आपने बहुत ही सवाल सलोनी इतने दाग धुल जाएंगे। और कीटाणु का क्या? मासी ऐसा गुस्सा करेंगी मामा। नया फेना जर्म क्लीन जो सिर्फ दाग नहीं हटाए 99% तक कीटाणु भी। ये लैब से प्रमाणित है, इसलिए फेना ही लेना। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। मम्मी की छुटकी, डैडी की गुड़िया, पल में जो भर दे खुशियों से दुनिया, खट्टी मीठी बातें, मस्ती मुलाकातें, दिल में बसी सबके इस घर की बेटियां, हर घर के हर दिल में बसा अमूल ताजा, हमेशा फ्रेश। इस घर की बेटियां। थे सवाल पूछा, इन्होंने भी कोशिश की इस पर जवाब देने की, क्योंकि इन्होंने ऑर्गेनाइजेशन की बात की, वो वजह कहा इन्होंने। असल में ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो रेड क्रॉस ऑर्गेनाइजेशन है, ये इसकी जिम्मेदारी बनती है कि जो एक डेडिकेटेड वॉलंटियर फोर्स उभर आए, जी, इसको हम बिल्ड अप कर लें। इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, हमने पहले ही फैसला ले लिया है। कोविड की वजह से हम ज़्यादा काम सही नहीं बात कर है, सके, बिल्कुल। बट वी आर रेडी। मैं पर्टिकुलरली, इट्स टीम हेडेड बाय मी, हम हर डिस्ट्रिक्ट में सिर्फ इसी के लिए जा रहे हैं और किसी काम के लिए नहीं। जी, जो हमारे वहाँ वॉलंटियर्स ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं, चाहे एक्टिव हैं चाहे पेशू नॉन एक्टिव, जी, हम इन सबों को बुलाएंगे। और जो सिस्टर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, चाहे वो होम गार्ड्स है, डिजास्टर मैनेजमेंट है, जी। यूथ सर्विस है, जी, पर्टिकुलरली एजुकेशन डिपार्टमेंट, क्योंकि असल यूथ तो स्कूलों और कॉलेजों में, हम इन सबों को एक प्लेटफार्म पर डिस्ट्रिक्ट में ला रहे हैं। वो मेरी जिम्मेदारी बनती है, आई एम हेडिंग दैट टीम। जी। तो हम देखेंगे कि हम उनसे बात करके, इंटरेक्शन करके, उनके मसाइल जानकर, उनकी मुश्किलें समझकर, फिर हम एक ठोस बुनियाद पर एक डेडिकेटेड वॉलंटियर फोर्स एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल कायम करेंगे। उनके जो मसाइल हैं, हमने पिछले साल मैंने रिव्यू भी किया था, वहाँ ये बात चली थी, देखिए हम किसी वॉलंटियर को यहाँ कल के लिए मसलन बुला रहे हैं, जी, उसको 300 रुपया देना पड़ेगा किराया आने जाने में, 500 रुपया। इफ़ वी आर नॉट पेइंग हिम, वो क्यों आएगा, हालांकि वो हमारी फंक्शन में आ रहा है। लेकिन इस साल हमने उसके लिए प्रोविज़न रखा है और वो अप्रूव भी हुआ है, वी आर ऑलरेडी एट इट। लेकिन तफसीली गुफ्तगू के बहद ही में मालूम चलेगा कि उनके मसाइल असल में क्या हैं और किस हद तक हम उनको निपटा मतलब ख़त्म कर सकते हैं, बिल्कुल इनको सही हल बात कर है। सकते हैं, जी। और आगे इस कारवान को हम कैसे आगे बढ़ा मजबूत सकते हैं। मजबूत बुनियादों पर आगे ले जाए। कुरैशी साहब, चूँकि इस साल जो है, इस साल अगर हम इस थीम के हवाले से बात करेंगे, टुगेदर वी कैन थ्रू वॉलंटियरिंग, जो ये थीम है, इस थीम का मुद्दा मकसद क्या है, और इसको ज़रा समझाइए आप। हाँ, बहुत बहुत अच्छी बात है। देखिए, वॉलंटियर आप भी बन जाओगे, जी, मैं भी बना हूँ, मेरी रजिस्ट्रेशन हो चुकी है लाइफ टाइम वन, हम आपको भी बनाएंगे। इनफैक्ट आप मुझे ज़्यादा सीनियर है रेड क्रॉस में, ये हम सारे हैं। जी, अगर आपकी हमसायगी में आतिशजनी का वाक़ात होता है, आप चले जाओगे, क्या आप अकेले उसको बुझा सकोगे? नहीं, आपको होने की ज़रूरत है। बिल्कुल दैट सही, मीन्स बिल्कुल वी हैव सही टू बी फरमाया, टुगेदर, बिल्कुल सही फरमाया। विद टुगेदर, बीइंग टुगेदर, एक वॉलंटियर ग्रुप बन जाएगा, एक ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइज के तौर पर। हम जो ये मसाइब हैं या जो कैलेमिटीज़ हैं, उनका हम मतलब दिफा कर सकते हैं, उनसे बचाव कर सकते हैं। यही इस साल के इस मौजू का थीम है, टुगेदर वी कैन, यानी अकेले नहीं, मिलजुल के इकट्ठे होकर एक ग्रुप बना के रज़ाकाराना तौर हम वॉलंटियरली सर्व करें अपनी कम्युनिटीज़ में, अपनी हमसायगी में जो लोग रहते हैं उनकी मदद करें, इन्हें ऑर्गेनाइज, इन्हें सिस्टमेटिक, इन्हें ग्रुप मैनर। यही इस थीम का मुद्दा व मकसद है। मुदस्सिर साहब, आपका तासुर हम चाहेंगे। जैसे कैंप्स का इनकाद करते हैं, या इंटरनेशनल लेवल पे जो आप देखते हैं इस वक्त, इंटरनेशनल लेवल पे जो एक्टिविटी है, उन एक्टिविटीज़ को आप किस तरह से देखते हैं? क्या उस चीज़ को आप फॉलो करते हैं? जी, जहाँ तक
रेड क्रॉस वॉलंटियर का ताल्लुक है, जी, जी। हम एक यूनिवर्सिटी, एक प्रिंसिपल है हमारा यूनिवर्सिटी, उस पर हम काम करते हैं। जैसे हमारा इंटरनेशनल लेवल पे जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं, उनका जो मैकेनिज़्म है काम करने का, जो वो जिस तरीके से काम करते हैं, उसी तरीके को हम कॉपी करते हैं। यानी हर जगह पे, रीजनल लेवल पे, लोकल लेवल पे, उसी को हम कॉपी करके उसी हिसाब से वो चलाते हैं। जैसे अभी हमारा जो चल रहा है सरू का प्रोग्राम चल रहा है, सोशल एंड एमरजेंसी रेस्पॉन्स वॉलंटियर, जी, तो उसमें भी ये है कि जो गाइडलाइंस जेनेवा से आई हैं, उसी गाइडलाइंस को यहाँ के जो नेशनल हेडक्वार्टर्स है वो आगे यूटी को फॉरवर्ड करके हम उसी गाइडलाइंस के तहत काम करते हैं। एक यूनिवर्सिटी रहती है हर जगह पे काम करने की। हमारे प्रोड्यूसर साहब परवेज सजाद साहब जानना चाहते हैं, ये उनकी तरफ से ये सवाल है आपको कि अगर कोई किसी ख़ास महकमे में काम कर रहा है, किसी डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, कोई खातून है जो घरेलू काम करती है, ये कौन कौन जुड़ सकता है इस चीज़ के साथ? कोई भी हो वो हमारी इस तहरीक, इस कारवां के साथ जुड़ सकता है। सिर्फ एक फार्म उसने भरना है, एक फार्म है 100 रुपये का। इसमें कोई कैद वगैरह है कि कोई एक रह सकता नौजवान अगर किसी दूसरी के साथ चीज़ के साथ, इसकी थोड़ी सी वजाहत नहीं, कीजिए। चाहे वो सरकारी मुलाजिम है, चाहे कोई भी काम करता है, किसी रंग व नस्ल से ताल्लुक़ रखता हो, कोई भी काम करता हो, वो चाहता है कि मैं खदमत खल्क करूँ रज़ाकारन तौर, वो हमारी कारवां के साथ मिल सकता है। J&K रेड क्रॉस से चाहे DC के पास जाइए, वहाँ भी फार्म भरना है, 100 रुपया भरना है, उसकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। जब जब ज़रूरत होगी उसका नाम होगा, उसको हम बुलाएंगे, हमारी मदद कर लीजिए। उसके बगैर भी वो आ सकता है। आप कोई कहीं ज़रूरत है, हम तो बहुत खुश होंगे, विल बी मोर देन हैप्पी टू हैव एनी मेंबर ऑफ आवर ऑर्गेनाइजेशन। कश्मीरी में एक जुमला है, ताचिवना रात वांदाई, सुना होगा आपने? हाँ, जैसे बच्चे को भी बोलते हैं बाचुल्ला कुटासा तमरिचुमाना रात वंदे कार सईद के। लेकिन जब मैं इस जुमले की तरफ देखता हूँ, सही मानों में मुझे लगता है, हमें ये लगता है कि सही मानों में खून देने वाले बहुत कम लोग हैं, लेकिन अपने रिश्तेदारों को भी नहीं देते हैं। हाँ, इवन अगर एक ही घर में 4 आदमी होंगे, फिर जब उनसे कहा जाता है कि खून दे दीजिए, खून की अशद ज़रूरत है, हिचकिचाते हैं। लेकिन यही वॉलंटियर ऐसा है जो इस तरह बाजू लेके जाता है। बिल्कुल। तो हमारे ख्याल से ये जो जुमला है रात वंदई, यही वॉलंटियर पूरा करता है। अब अगर ये पूरा करता है, समाज पे, हम पे क्या जिम्मेदारी है, किस तरह से हम इनकी हौसला अफजाई करें? हाँ, समाज का भी यह हक बनता है कि जो रज़ाकाराना तौर, खुलूसी नीयत से और खुलूसी अमल से इनकी मदद के लिए आते हैं, जब भी वो उनके पास आएँ, वो इनकी इज़्ज़त करें। और अगर ये किसी काम के लिए कहें, कोई चैरिटी मांगें, ख़ासकर जो हमारे यहाँ अहले सरोवत लोग, यहाँ ऑर्गेनाइजेशन हैं, हम उनसे भी दरख्वास्त कर रहे हैं इस माध्यम के हवाले से, इस चैनल के हवाले से, कि हमारी इस ऑर्गेनाइजेशन की आप माली मावनत फरमाएँ, ताकि जितने भी हमारे ज़राए बढ़ जाएंगे, माली वसाइल बन जाएंगे, हम लोगों की और ज़्यादा खिदमत करेंगे किसी मुआवजा के बगैर। जी मुदस्सिर साहब, आप ये बताइए कि अब जो यूथ है, जो नौजवान पौध है, उनको क्या पैगाम है आपकी तरफ से, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा नौजवान जो है इस काम की तरफ, खिदमत खैर की तरफ जुट जाए? नौजवानों से मेरा यही एक मैसेज आएगा उनकी तरफ, वो ये कि हम सब जो है, हमें जज्बा भी है और हमें एनर्जी भी है, और हम कर सकते हैं, वी कैन डू। ऐसा ना हो कि हम एक उम्र की उस सतह पे पहुंच जाएं जहां पे हम चाहते हम कुछ कर पाएँ, लेकिन उस टाइम पे शायद वो मौके मैसर नहीं होंगे करने के। अभी हम कर सकते हैं और हमें आगे बढ़ना चाहिए और लोगों की मदद के लिए। जनाब मुदस्सिर मकबूल भट्ट साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जनाब जे कुरैशी साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ तशरीफ लाए। नाज़रीन मोहतरम, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन चलते चलते फिर वही बात जो हमने आगाज़ में कही कि किसी के काम आने में इंसान को सबसे ज़्यादा सुकून जो है, सबसे ज़्यादा मसरत मिलती है। दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना ताअत के लिए कुछ कम थे करोड़ियाँ। आज के प्रोग्राम में इतना ही। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।